This call is now being recorded. So yesterday we have seen in this example, just a recap, we have a large data file which is of 300 MBs, which is stored at 3 different data nodes. First block is there, which is of 124 MB, second block of 124 MB, and third block of 52 MB. Now let's suppose this big file has got this content. So some of the content will go to the first node, another content, a part of it will go to the second node, and another part of it, that is third part, goes to third data node. So in MapReduce framework, if we want to process this data, this particular file, and what processing is required to be done, we have to count the number of words appearing into this file. Okay. So this is the job which is required to be done. So what happens in MapReduce framework, we have to code two different classes. One is the mapper class. The programmer has to code for mapper, and another thing, he has to code something for reducer functionality. Okay. Now before starting with the mapper, MapReduce framework automatically, like that we have some job tracker, then we have some task tracker and all. So whenever client is submitting the job, that means the word count program along with the input file, if the user is submitting this kind of job to MapReduce framework, then what happens? At 3 different data nodes where the data is stored, those blocks are stored, the task tracker will start its execution. So the very first thing which is done is reading the records. Okay, reading the record means what? Whatever file, whatever contents are there in at that node, line by line, or we say record by record, the contents are read. So record reader will is an interface which will convert the line or the record into a key value pair, and that key value pair, like this, the offset value comma the contents of the first line, the offset value comma content of the second line. uh, these are the set of key value pairs which are generated by the record reader. So अपने पास में अगर 100 lines है इस input file में, तो 100 times the record reader will be called, and 100 key value pairs like of the form offset and the actual contents of the record will be created, and one by one the key value pair is given as input to the mapper class. Mapper class will take this key value pair as input and generate a list of key value pairs. So हमको word count program में हमें करना क्या है? We have to make or code for in such a way that the input parameters are key value pairs, where the first first input parameter is of integer or long type, and the second parameter is a text type, and mapper का output क्या produce हो रहा है? A key value pair again, and key value में first parameter text type and second parameter is integer or long type. ठीक है. So mapper is getting key value pair as input and producing key value pair as output, और उसका जो format है, data format है, वो हमको functionality से ही पता चलेगा. ठीक है. So ये first इसके लिए कोड करना है. Secondly, ये जो है mapper will be creating some intermediate results. The intermediate results will be written somewhere. ठीक है. Those will be collected in a buffer kind of thing. वो हम लोग देखेंगे क्या करते हैं उसके लिए. And उसके बाद में automatically MapReduce framework takes care of shuffling and sorting, and ultimately this kind of pair will be converted like this by the shuffling and sorting stage, which will be done automatically by the MapReduce framework. ठीक है. तो इसमें भी यूजर को कुछ करना नहीं है. तो मैपर क्लास का जो भी आउटपुट होगा वो शफल एंड सॉर्ट होके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने वाला है फाइनली. ठीक है. नाउ व्हेनेवर वी विल बी writing some code for reducer, what input we will be receiving? We will be receiving the input of the form key value pair, such that key is the text value and we have values as list of values, मतलब array kind of
फॉर्म रहेगा वो, या जो भी है, मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यूज विल बी गेटिंग इन एज अ सेकेंड पैरामीटर टू द एज इनपुट टू द रिड्यूसर, ठीक है। एंड फाइनल आउटपुट ऑफ रिड्यूसर किस फॉर्म में रहता है यहाँ पे वर्ड काउंट में, key value pair where first is the text and first parameter is the text type and second parameter is integer type। और अल्टीमेटली रिड्यूसर का काम क्या है यहाँ पे, रिड्यूसर को करना क्या है, की के करस्पॉन्डिंग ये जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है उनको ऐड करना है, दैट इज इट। सो ये दो फंक्शनैलिटीज हमें कोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए कोड वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट कोड, हाउ टू राइट इट। So you can just see over here, this is the map function। map function के input क्या है, you can just imagine वो map का input क्या था, map का input था 0, the sentence, मतलब ऑफसेट कॉमा द सेंटेंस। अगर फर्स्ट सेंटेंस 19 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो सेकंड सेंटेंस का ऑफसेट क्या था 20 कॉमा द सेकंड रिकॉर्ड, देन द ऑफसेट वैल्यू फॉर द थर्ड लाइन एंड द करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड फॉर द थर्ड द वैल्यू फॉर द थर्ड रिकॉर्ड एंड सो ऑन, इस तरह से था। तो इनपुट पैरामीटर क्या है, लॉन्ग राइटेबल, दैट मीन्स ये लॉन्ग राइटेबल में क्या कैच होने वाला है, आपका ऑफसेट। एंड सेकेंड पैरामीटर इज द एक्चुअल रिकॉर्ड, मतलब क्या, एक्चुअल सेंटेंस जो हमने पहली लाइन में लिखा था या दूसरी लाइन में लिखा था या तीसरी लाइन में लिखा था या चौथी लाइन में लिखा था, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। सो रिकॉर्ड रीडर का जो आउटपुट है वो यहाँ पे कैच हो रहा है, यहाँ पे एज इनपुट हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर इज द इनपुट। और एक और थर्ड पैरामीटर होता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ, मतलब कंटेक्स्ट में हम लोग we will be writing the processed output, we'll be writing, it is a kind of buffer, intermediate output जहाँ पे भी स्टोर करना है तो वो context dot write से will be storing that output into a temporary buffer area, ठीक है। सो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि this is the first the long writable is the offset value, that is key, then text is your actual record for which we have to just convert that string into the words, बराबर। वो तो पूरा एक सिंगल फुल एक स्ट्रिंग था कि my name is so and so, वो एक फुल स्ट्रिंग है, फुल रिकॉर्ड है। तो फर्स्ट दैट लाइन विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग एंड देन दैट स्ट्रिंग इज टोकनाइज्ड, मतलब क्या, वो स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं वो टोकनाइज स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग उसे बाइफरकेट कर देंगे, मतलब वर्ड्स हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। वंस दोज वर्ड्स आर आइडेंटिफाइड तो वन बाय वन जैसे जैसे एक एक वर्ड मिलता जाएगा वैसे वैसे ये फॉर लूप चलाया है यहाँ पे। तो फर्स्ट वर्ड मिला कंटेक्स्ट डॉट राइट टेक्स्ट पार्ट, वो जो भी पार्ट में जो भी वैल्यू कैप्चर हुई है वो हमने बफर में राइट किया यूजिंग कंटेक्स्ट डॉट राइट फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। दैट मीन्स पहला हमारा लाइन था माय नेम इज रश्मि, तो माय नेम इज रश्मि में माय वाज द फर्स्ट कीवर्ड, तो माय फर्स्ट कीवर्ड पार्ट में कैप्चर हुआ। यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट राइट में माय कॉमा हमें लिखना क्या है, अकरेंस ऑफ दैट कीवर्ड। नाउ बाय डिफॉल्ट अकरेंस ऑफ दैट कीवर्ड इज 1 ओनली, बराबर। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग राइटेबल में कांस्टेंट एक लिटरल 1 कांस्टेंट इनपुट दिया है। 2 3 4 5 हो ही नहीं सकता बिकॉज माय नेम इज रश्मि, इसमें माय एक ही बार अपीयर हो रहा है, नेम एक ही बार है। अगर माय नेम इज डैश हर नेम इज डैश, ये मैंने फर्स्ट सेंटेंस दिया है तो नेम और पहला वाला नेम भी 1 टाइम आ रहा है, सेकेंड टाइम मतलब जो 5th कीवर्ड है नेम वाला वो भी मेरा 1 टाइम ही आ रहा है ना अभी। तो आई एम जस्ट काउंटिंग, आई एम जस्ट गिविंग इट सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट 1। सो ये लॉन्ग राइटेबल में लिटरली कांस्टेंट इनपुट दिया है हमने 1। इट इज द occurrence number of times this particular keyword is occurring as of now। तो जब भी ट्रैवर्स हो रही है स्ट्रिंग तो हमेशा 1 1 1 1 ही आएगा उसका occurrence, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज टू बी डन इन मैपर, ठीक है। फिर उसके बाद में
नेक्स्ट अगर हम लोग हमारा एग्जांपल रिकॉल करेंगे तो अभी हमको क्या मिल रहा है, फर्स्ट लाइन से मुझे 4 की वैल्यू पेयर मिल रही थी, सेकेंड लाइन से मुझे अगेन 5 या 6 की वैल्यू पेयर मिल रही थी. 1 सेकेंड. जैसे ये फर्स्ट की वैल्यू पेयर मतलब फर्स्ट लाइन, फर्स्ट की वैल्यू पेयर ऑफसेट कॉमा फर्स्ट रिकॉर्ड, इससे मुझे ये 4 की वैल्यू पेयर मिली. मैपर फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट हुआ, देन अगेन द रिकॉर्ड रीडर विल go and read the second line and generate the second key value pair. Then the mapper will be executing second time and it will convert this 19 comma my friends is Rashmi, this second record, into the list of 5 key value pairs and so on. तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीडर कॉल हो रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैपर फंक्शन भी कॉल होगा एंड अकॉर्डिंगली context dot write में the whole string will be generated as intermediate output. Now this output goes for shuffling and sorting stage, which is taken care by the MapReduce framework automatically. So after that shuffling and sorting, this kind of output will be generating. तो वो intermediate state जो context dot write है ना, उसी में ये सारा shuffling sorting होगे, वहीं पे ये चीजें स्टोर हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज रिड्यूसर का कोड जो हमें कोड करना है. सो रिड्यूसर का कोड क्या है एग्जैक्टली, रिड्यूसर में करना क्या है, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय फाइनल आउटपुट. व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, whatever is the list of numbers appearing for any keyword I have to add them, that's it. अगर मुझे यहाँ पे 1000 की वैल्यू पेयर मिल रही है तो रिड्यूसर के पास भी 1000 की वैल्यू पेयर ही मिलेंगी, बिकॉज शफलिंग एंड सॉर्टिंग होने के बाद में जो भी रिपीटेटिव कीज हैं वो सारी रिमूव हो गई है. रिपीटेटिव कीज क्या थी, माई कॉमा वन, माई कॉमा वन, then one more time it was there my comma 1 in this sentence and one more time it was there in my comma 1 in the third block at the third node. ultimately सब कुछ combine होने के बाद में my keyword was repeating my 1 my 1 my 1 and my 1. this key value pair was repeating multiple times. उसमें से वो डुप्लीकेशन हैज बीन रिमूव, और डुप्लीकेशन रिमूव करते टाइम क्या हुआ की तो सिंगल रही my एंड उसके जो भी वैल्यूज थे उसे कंसोलिडेट कंबाइन करके रखा है यहाँ पे. क्लियर. ठीक है. सो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, मतलब रिड्यूसर को करना क्या है, रिड्यूसर को हैज टू जस्ट sum up all these values and count the number of frequency, count number of occurrences. ठीक है. so accordingly reduce का input parameter क्या रहेगा, my comma my और 1111 ये रहेगा reduce का input. so reduce has got text as key input and iterable long writable, मतलब 1,1,1,1 इस तरह का ऐसा कुछ एरे काइंड ऑफ या बंडल जो भी हो, लिस्ट जो भी हो, तो वो ये लिस्ट है एज सेकेंड इनपुट विच इज नथिंग बट वैल्यू. ठीक है. दिस टेक्स्ट टाइप ऑफ की एंड दिस collection of those number of ones as values. and context that means जहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो एक इनपुट आया है, जो वहां से ये सारी वैल्यूज वन बाय वन रीड करेंगे रिड्यूस में. सबसे पहले सम इनिशियलाइज हम लोग करेंगे 0, बिकॉज सम की वैल्यू ही हमें डिस्प्ले करनी है इन द फाइनल आउटपुट ऑफ की वैल्यू. सो बाय डिफॉल्ट सम, सबसे पहले सम को इनिशियलाइज किया है एंड उसके बाद में लॉन्ग राइटेबल वैल्यू, तो वैल्यू डॉट गेट से हमें वो वैल्यू मिलती जाएगी. तो 1 1 1 1 1 बाय 1 वो ट्रैवर्स होके पूरा वो कलेक्शन ट्रैवर्स होके 1 1 1 1 वो यहाँ पे वैल्यू कलेक्ट होके ऐड होती जाएगी. सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू डॉट गेट, ऐसे फॉर लूप में चला है. तो वो जो भी कलेक्शन में 1,1,1,1 कितने भी टाइम अकर हो रहा है वो एडअप हो जाएगा. एंड देन की डॉट की कॉमा सम will be returned to that context dot write. ठीक है. so this is how
द कोडिंग विल बी डन नाउ। अभी ये जो है आपका ये पूरा जावा में है। नाउ ये फंक्शनैलिटी और भी मल्टीपल वेज हैं थ्रू विच दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। यू हैव मल्टीपल वेज एंड मीन्स थ्रू विच this particular functionality can be implemented. Now second thing is as per the problem statement, the mapper and reducer functionality and will be decided and accordingly the implementation will be done. अंडरस्टूड। तो उसके लिए आपको पूरा इस तरह से कंटेक्स्ट समझ के लेना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ भी जैसे कुछ भी करना है, एवरेज आउट करना है कोई वैल्यू, या यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, या फिर सॉर्टिंग करना है, या फिर और भी कुछ हो सकती है, एवरेज कैलकुलेशन करना है, वॉट एवर, तो पहले आपको इस तरह से पूरा फ्लो समझ लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट डिसाइड अपॉन व्हाट फंक्शनलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी डन by the mapper class and what functionality is required to be done by reducer. Once you are clear with this functionality, then you can code accordingly. ठीक है। So next is ये फाइल है, ये फाइल का कोड आपको पूरा मिलेगा। वो कोड में थोड़ा बहुत आपको लेकिन टाइप करना पड़ेगा बिकॉज वो जो भी रहेगा, और ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल भी है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द होल फ्रेमवर्क। ठीक है, बैकग्राउंड में किस तरह से वर्किंग पूरा हो रहा है उसके ऊपर आपका पहला फोकस होना चाहिए, और उसके बाद में सेकेंड कम्स योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन द इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स इजी, अदरवाइज दिस होल प्रोसेस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो so whenever we want to write any map reduce program, दो मेन कंपोनेंट्स तो हमने देखे यहाँ पे। मैपर क्लास चाहिए, मैपर कोड लिखना है हमें, रिड्यूसर का कोड लिखना है हमें। नाउ मैपर और रिड्यूसर कहाँ से कॉल होने वाले हैं वो भी तो एक कोड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेन क्लास जो रहता है हमारा, उसमें हम लोग मैपर मल्टीपल पैरामीटर्स हमें सेट करने रहेंगे, और उसी में हम लोग मैपर कॉल करेंगे, रिड्यूसर कॉल करेंगे, एंड आउटपुट फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा वो स्पेसिफाई करेंगे, इनपुट फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा वो सब स्पेसिफाई करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, सो this is the main class, we call it, we have named it as driver class। बाकी ये सारे जो भी आपके लाइब्रेरी फाइल से वो इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो मेन और मतलब पहले दो मैपर और रिड्यूसर का कोडिंग किया, उसके साथ साथ में वो कहाँ से कॉल होने वाले हैं वहां पे मेन क्लास में हमें सम पैरामीटर सेटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ठीक है, सो हियर वी हैव नेम्ड इट एज वर्ड ड्राइवर। अभी वर्ड ड्राइवर में आपका मेन फंक्शन है। यहाँ पे न्यू जॉब हैज बीन क्रिएटेड, द इंस्टेंस फॉर दिस न्यू जॉब फॉर जॉब हैज बीन क्रिएटेड। once the new job instance is created, you have to, अच्छा ओके, हम जो भी मैपर और रिड्यूसर और जो भी कुछ जावा फाइल्स लिखेंगे वो अल्टीमेटली वो उसका वो तो रहेगा हमारा, वो हमें लिनक्स एनवायरनमेंट में लेके आना पड़ेगा, बिकॉज लिनक्स में तो हमारा ओके हाँ हाँ, हमको HDFS एनवायरनमेंट में लेकर के आना पड़ेगा। तो उसके लिए whatever project we will be creating, that project should be converted to the jar file। जार फाइल मतलब कि आपको पता रहेगा जार फाइल में मल्टीपल जो भी जावा फाइल्स है वो कंपाइल होने के बाद में उसका एक जिप फाइल क्रिएट होता है और वो जार फाइल रहेगा। तो वो जार फाइल सेट जार बाय क्लास, ये एक पैरामीटर हमें सेट करना रहेगा। वहां पे हमारा क्या पैरामीटर आएगा, वर्ड काउंट डॉट क्लास। वर्ड काउंट डॉट क्लास मतलब एक्चुअली ये जो मेन क्लास है ना हमारा वो रहेगा। ठीक है, दिस वाज आवर मेन क्लास। सो यहाँ से उसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास इट हैज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। देन ये हमने किया, जॉब नेम सेट हुआ है। देन उसके बाद में फाइल इनपुट फॉर्मेट डॉट सेट इनपुट पाथ। तो
इनपुट फाइल क्या रहने वाला है एंड आउटपुट फाइल क्या रहने वाला है, we can we have to specify the path over here. So we can directly write down the input file path and the output file path over here, or else here we are getting that path from the user. So whenever we will be executing that jar file, अपना जो वर्ड काउंट जार फाइल रहेगा वो जब हम लोग हडूप एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे तो साथ में हमें 1 सेकेंड ना. Okay, so so here in case of set input path, user will specify the input file path, and in set output path we have to specify the output path where the output file will be stored. अदरवाइज हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं, डायरेक्टरी नेम दे सकते हैं अलॉन्ग विद द पाथ, यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हैं इनपुट का अलॉन्ग विद द पाथ वॉट एवर. ठीक है, नेक्स्ट इज सो अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे यूजर से एक्सेप्टेंस हम लोग करवाएंगे. देन नेक्स्ट इज सेट मैपर क्लास. तो सेट मैपर क्लास में हम लोग जो मैपर क्लास क्रिएट करेंगे उसका क्लास नेम रहेगा. देन सेट रिड्यूसर क्लास, जो भी हम लोग रिड्यूसर क्लास क्रिएट कर रहे हैं लिख रहे हैं उसका क्लास नेम विल बी स्पेसिफाइड ओवर हियर. You must be careful because it is case sensitive part. ठीक है, यहाँ पे W हमने स्मॉल किया तो एरर देगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल while giving the while specifying the class names. Then next is job dot set output key class and job dot set output value class. Key and value. Now this is key and value corresponding to the uh, ये है
हाँ, ये वाला तो है सेट मैप आउटपुट की एंड वैल्यू। तो मैपर का आउटपुट यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का है एंड उसका वैल्यू इंट राइटेबल है। एंड दिस इज फॉर फाइनल आउटपुट। सेट आउटपुट की एंड सेट आउटपुट क्लास, यहाँ पे हम लोग फाइनल आउटपुट के की वैल्यूज का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं, टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्लियर? सो फर्स्ट विल कॉल, यहाँ पे है इनपुट फाइल पाथ, आउटपुट फाइल पाथ, देन मैपर, देन रिड्यूसर, देन मैपर का आउटपुट हम लोग पहले लिखते हैं जस्ट टू हैव द प्रॉपर सीक्वेंस। मैपर का आउटपुट पहले आएगा एंड उसके बाद में फाइनल आउटपुट। ठीक है, वंस द फाइनल आउटपुट, हाँ, वंस द होल एग्जीक्यूशन इज डन देन जॉब डॉट वेट फॉर कंप्लीशन ट्रू सेट होगा एंड उसके बाद में इट विल रिटर्न सक्सेस। तो हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होता है, तो in the output folder we will have two files. One is the actual output file where that word count will be collected, and second is success file एक बनता है। ठीक है, so now we will see how to execute. So you have to start this and you have to go to this IDE Eclipse, जहाँ पे आप लोगों ने काम किया भी होगा जावा लैब या प्रीवियस लैब्स में भी। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आईडी में ऑलमोस्ट सभी ने काम किया होगा इसमें या फिर किसी और दूसरे इसमें, बट सो यू मस्ट बी फैमिलियर विथ इट। सो हियर वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ प्रोजेक्ट। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, देन विल गो टू, ये नॉर्मल कोर्स में आप फर्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो इस तरह से रहेगा ये। we have to select java project, next we have to give the project name, so let the project name be word count final। दिस इज माई या PRJ वर्ड काउंट ऐसे लिख देती हूँ मैं, PRJ वर्ड काउंट, देन क्लिक ऑन फिनिश। सो यहाँ पे PRJ वर्ड काउंट नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू, ये आप हमारी लाइब्रेरी फाइल से जो बाय डिफॉल्ट रहती है। नाउ बिकॉज वी हैव टू execute this in we have to communicate to Hadoop, like MapReduce टास्क हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमको Hadoop लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। Hadoop लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए गो select this JRE system library, right click on this, build path, then go to configure path से add external jar files, then we have to go to file system, then we have to go to user, then lib, then यहाँ पे आपको lib में जाके Hadoop की वेरियस लाइब्रेरीज, Hadoop की और भी जितने भी इकोसिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनके सारे लाइब्रेरीज विजिबल होंगे। सो MapReduce फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन के लिए, MapReduce जॉब एग्जीक्यूशन के लिए हमको दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, इंक्लूड करनी है। वन इज Hadoop में मतलब Hadoop और Hadoop कोर, हाँ Hadoop और Hadoop MR MapReduce। तो पहले हम लोगों ने Hadoop में गए, Hadoop से Hadoop कॉमन 2.6.0 CDH Cloudera समथिंग कुछ तो फाइल है, 5.4.2.jar, ये फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्लिक ऑन ओके,
सो रेफरेंस लाइब्रेरी में ये एक फाइल रेफर हुई है. Now again you have to import or include the MapReduce library as well, Hadoop MapReduce library. So again right click on JRE system library, build path, configure path, add external jar, go to file system, then user, then lib, and then HDFS, सॉरी Hadoop 0.20 MapReduce, ये फोल्डर सिलेक्ट कीजिए आप. देन इसमें Hadoop core 2.6.0 MR1 CDH 5.4.2 jar, ये फाइल हमें सिलेक्ट करनी है. Hadoop core फाइल हमें सिलेक्ट करनी है. Okay. So here second Hadoop library is also included. Once this is done, next is हमें यहाँ पे मल्टीपल जावा फाइल्स क्रिएट करनी है. एक वन फॉर मैपर, वन फॉर रिड्यूसर एंड वन विल बी फॉर मेन क्लास ड्राइवर. सो हियर गो टू, मतलब राइट क्लिक ऑन SRC, न्यू क्लास and give some class name. So प्रोजेक्ट नेम हमने PRJ वर्ड काउंट दिया है, तो हम लोग देते हैं यहाँ पे CL क्लास के लिए CL जाने दो. CL मेन या ड्राइवर कुछ भी में, तो मेन वर्ड काउंट फिनिश. देन अगेन सोर्स में जाके दूसरा एक फाइल मैप वर्ड काउंट finish, then again right click and again create one more class for reducer. तो reduce word count finish. इस तरह से 3 जावा फाइल्स क्रिएट करनी है. यहाँ पे आपको पूरी कोडिंग करनी है. मेरे पास में मैंने ऑलरेडी ये तीनों कोड करके रखा है. ठीक है. सो what I can do, I'll just paste the code. तो ये है टेस्ट ड्राइवर का कोड जाएगा यहाँ पे, या और एल्स व्हाट कैन बी डन, ये पूरे तीनों की तीनों फाइल्स में यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देती हूँ. कॉपी, पेस्ट, ठीक है. सो अभी मेरे पास में क्या है, प्रोजेक्ट वर्ड काउंट, उसमें SRC में डिफॉल्ट में 3 टेस्ट ड्राइवर, टेस्ट मैप एंड टेस्ट रिड्यूस, ऐसे 3 डिफरेंट फाइल्स है. एंड देन I have to some of the libraries, default libraries which are included, and 2 Hadoop की जो libraries मैंने include की थी वो है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि आपका जो भी टेस्ट ड्राइवर, जैसे मैं अभी टेस्ट ड्राइवर में जहाँ पे मेन क्लास है उसका नाम है टेस्ट ड्राइवर, तो सेट जार बाय क्लास, यहाँ पे टेस्ट ड्राइवर, यहाँ पे नेम आपका टेस्ट ड्राइवर होना चाहिए. एंड देन उसके बाद में टेस्ट मैप है, तो अगर मेरा मैपर क्लास का नाम टेस्ट मैप है तो अकॉर्डिंगली जो मेरा टेस्ट ड्राइवर है उसमें ये सेट मैपर में क्लास नेम शुड बी टेस्ट मैप डॉट क्लास. एंड टेस्ट रिड्यूसर कोड किसमें है, टेस्ट रिड्यूस डॉट जावा में है.
सो ड्राइवर क्लास में यहाँ पे सेट रिड्यूसर क्लास पैरामीटर में हमें वो क्लास नेम स्पेसिफाई करना है जहाँ पे मेरा रिड्यूसर कोड है। तो टेस्ट रिड्यूस में मेरा रिड्यूस का कोड है, तो यहाँ पे वो नेम्स हमें स्पेसिफाई करना है। ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ पे ये तो पैरामीटर सेटिंग एज इट इज है। यहाँ पे टेस्ट मैप एंड टेस्ट रिड्यूस जो वर्ड जो एक पीपीटी में एक डिफरेंट लॉजिक है, और ये जो वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में जो आपको मिलेंगे कंटेंट्स, इसमें हमारा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन डॉट स्प्लिट यूज किया है, वहाँ पे हम टोकनाइज समथिंग वो यूज किया था, ठीक है ना। तो you can have multiple ways of implementing a particular functionality, you all know better than me, ठीक है। So once your project is created, ठीक है, प्रोजेक्ट में 2 रेफरेंस फाइल्स इंक्लूड करनी है Hadoop की, और उसके साथ में 3 जावा फाइल्स क्रिएट करनी है। once it is done without any errors and all, फिर उसके बाद में सिलेक्ट द प्रोजेक्ट एंड उसका हमें जार क्रिएट करना है, जार फाइल क्रिएट करनी है। तो सिलेक्ट द प्रोजेक्ट, राइट क्लिक एंड वी विल एक्सपोर्ट, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। जावा जार ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, इसके लिए वो डायरेक्टली सिलेक्टेड था। तो आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, यू हैव टू गो टू जावा, देन जार, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेस मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है जिस प्रोजेक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है। सो प्रोजेक्ट वर्ड काउंट, इसको ही हमें, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है, इसे हमें एक्सपोर्ट करना है जार फाइल में। सो विल सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू जस्ट चेक कि आपका जो भी, मतलब वो आपको पाथ पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका वो जो जार फाइल है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट पाथ यूजिंग दैट ब्राउज एंड ऑल। तो ये अल्टीमेटली क्लाउडेरा, मतलब होम क्लाउडेरा में है, ये पाथ यहाँ पे आ जाता है फिर बाद में, ठीक है। तो अभी जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन्स, व्हाट कैन बी डन, जार फाइल उसी नाम से क्रिएट करो जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। PRJ वर्ड काउंट, it's not hard and fast to do like that. PRJ world count dot jar, let's see, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि हमारा वो जार फाइल प्रॉपरली उस लोकेशन पे क्रिएट हुआ है कि नहीं। 1 सेकेंड। So we have to check our jar file कि वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है और प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। इसमें तीनों क्लासेस आ जाने चाहिए, तीनों के क्लास कोड्स आ जाने चाहिए। सो वी हैव टू गो टू application, then system tools, then file browser, then after that go to file system से go to home से cloudera, ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी आया होम क्लाउडेरा। उसमें हमने क्या क्रिएट किया है, जार, जो प्रोजेक्ट नेम था उस नाम से हमने जार क्रिएट किया है, अभी वो देखा हमने। तो प्रोजेक्ट नेम PRJ वर्ड काउंट है, वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये ऑलरेडी प्रीवियसली क्रिएटेड जार फाइल्स है मेरे, ठीक है। सो प्रोजेक्ट वर्ड काउंट जार, दिस थिंग वी हैव क्रिएटेड रिसेंटली, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी the 3 class files over here। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज, नाउ वंस दिस फाइल इज क्रिएटेड, द जार फाइल इज क्रिएटेड, अभी हमें करना क्या है, अब हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, अंडरस्टूड। नाउ इफ वी हैव टू, हाँ ये हमने एक्सपोर्ट किया, अभी एक्सपोर्ट करने के बाद में एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन में हमको चेक करना है कि ये फाइल एग्जिस्ट
कहाँ कर रही है. So we'll just go to terminal and check for it. So as of now, this is being exported into Linux environment. Project word count.jar. ls किया मैंने, ls में मुझे project word count.jar यहाँ पे मिला ये फाइल. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So this Linux file jar, the file of Linux system, that this jar file is to be transferred to HDFS system. So the command is put command. So we will just transfer this project word count jar file to HDFS system. So the command is HDFS DFS hyphen put and the file name, source file name prj word count dot jar, and we have to transfer this to our करंट वर्किंग डायरेक्टरी. अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में किसी स्पेसिफिक फोल्डर में हमें ट्रांसफर करना है तो हमें पूरा पाथ देने की जरूरत होती है. अदरवाइज डोंट नीड टू स्पेसिफाई एनी डेस्टिनेशन पाथ. वो बाय डिफॉल्ट HDFS के करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये फाइल ट्रांसफर हो जाएगी. सो आई विल एग्जीक्यूट इट. I guess there is some spelling mistake. Word count dot jar. Cannot create, and name node is in safe mode. Now we need to first check our
name node service is working or not. So I will just one important thing, whenever you have to execute this MapReduce job, this jar file execution के लिए, you require to start your HDFS service and as well as your yarn service both. तो हो सकता है मेरी अभी स्टॉप हो गई हैं वो सर्विसेज. लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है.